Hello everyone, this is Adarsh Dwivedi. We are going to study chapter 4, that is Uncle Ken on the job. चलिए स्टार्ट करते हैं. We will have to do something about Uncle Ken, said Granny to the world at large. Granny ने कहा कि हमें Uncle Ken के लिए कुछ करना पड़ेगा. I was in the kitchen with her selling peas and popping a few into my mouth. Now and then Suji the Siamese cat sat on the sideboard patiently watching Granny prepare an Irish stew. Suji liked Irish stew. और अंकल कैन रसोई में दाना छील रहे थे और बीच बीच में एक एक मटर उठाकर खा रहे थे. सूजी सियामीज कैट साइडबोर्ड पर बैठी थी और दादी को इरिश स्ट्यू में पकाते देख रही थी. सूजी को इरिश स्ट्यू पसंद आया. It is not that I mind him staying, said Granny, and I don't want any money from him either, but it is not healthy for a young man to remain idle for so long. मुझे उसके रहने के लिए दिक्कत नहीं है, दादी ने कहा, और मुझे उससे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन यह स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं है कि वह इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहे. Is Uncle Ken a young man, Granny? Uncle Ken young man है, दादी ने कहा. He is 40. Everyone says he will improve as he. वो 40 के हो चुके हैं. अब सब कोई कहता है कि इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, ग्रोइंग के लिए. He could go and live with Aunt Mabel. वो जाकर Aunt Mabel के साथ रह सकता है. He does go and live with Aunt Mabel. He also lived with Aunt Emily and Aunt Berry. That's his trouble. He has too many doting sisters ready to put him up and put up with him. Their husbands are all quite well off and can afford to have him now and then. So our Ken spends 3 months with Mabel, 3 months with Berry, 3 months with me. That's why he gets through the year as everyone gets and does not have to worry about making a living. वह जाकर आंट मेबल के साथ रहता है और आंट एमिली के साथ रहता है, आंट बेरी के साथ और उसकी परेशानी की बात है कि उसकी बहनों ने उसे खड़ा करने और उसके साथ रखने के लिए बहुत सारी बहनें तैयार हैं. जो उसके हस्बैंड होते हैं वो बहुत सुखी और खुश होते रहते हैं. इसी वजह से अंकल कैन 3 मंथ मैबल के साथ और 3 मंथ बेरी के साथ और 3 मंथ एमिली के साथ रहते हैं और इसी तरह वो पूरे साल गेस्ट बनकर रहते हैं और उसे अपने लिविंग की कोई ज़रूरत नहीं होती. He is lucky in a way, I said. वो लकी है, ग्रैनी ने कहा. His luck won't last forever. Already Mabel is talking of going to New Zealand, and once India is free in just a year or 2 from now, Emily and Barry will probably go off to England because their husbands are in the army and all the British officers will be leaving. उसकी किस्मत हमेशा के लिए लास्ट रहती है. और तो जो मैबल है वो टॉकिंग कर रही है न्यूजीलैंड जाने के लिए, और एक बार भारत फ्री हो जाने के बाद शायद एमिली और बैरी 1-2 साल बाद इंग्लैंड चले जाएं, क्योंकि उनके पति सेना में हैं और सारे ब्रिटिश अधिकारी वहां से रवाना हो जाएंगे. Can't Uncle Ken follow them to England? क्या कैन काका उनका पीछा इंग्लैंड में कर सकते हैं? He will have to start working if he goes there. When your aunts find out that they have to manage without servants, they won't be ready to keep Ken for a long period. In any case, who's going to pay his fare to England or New Zealand? वह जानता है कि अगर उसके आंट वहाँ जाएंगे तो उसे काम करना होगा. जब आन को पता चलेगा कि वहाँ सर्वेंट्स की कोई की बिना काम कर सकते हैं तो वे लंबे समय तक कैन को वहाँ नहीं रखेंगे. किसी भी केस में जो उसके किराए का भुगतान इंग्लैंड या न्यूजीलैंड को करना पड़ेगा.
If he can't go, he will stay here with you. Granny, you will be here, won't you? हमें अगर वह नहीं जा सकता तो दादी तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम वह यहाँ होंगे, है ना? No, forever, only while I live. हमेशा के लिए नहीं, केवल जब तक मैं रहूंगी. You won't go to England? आप इंग्लैंड नहीं जाएंगे? No, I have grown up here. I am like the trees. I have taken the root. I won't be going away, not until like an old tree. I am without any more leaves. You will grow through. When you are bigger, you will probably finish your schooling abroad. नहीं, मैं यहाँ ग्रो हुआ हूँ. मैं एक ट्री की तरह हूँ. मैंने पेड़ की तरह रूट ली है. मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा ओल्ड ट्री की तरह. मैं बिना लीफ के नहीं हूँ. जब तक बड़े थे तो तुम अपनी स्कूलिंग फिनिश करोगे. I would rather finish it here. I want to spend all my holidays with you. If I go away, who will look after you when you grow old? मैं यहीं फिनिश करूँगा. मैं चाहता हूँ अपनी सारी हॉलीडेज आपके साथ स्पेंड करना. अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरे बाद आपको कौन देखेगा जब आप ओल्ड हो जाएंगी? I am old already over 16. मैं वैसे भी 16 year old हो चुका हूँ. Is that very old? It is only a little older than Uncle Ken. And how will you look after him when you are really old? अगर ये ओल्ड होगा तो ये लिटिल ओल्डर रहेगा अंकल केन से. तो आप उसे कैसे देखोगी जब आप सच में ओल्ड होंगी? He can look after himself if he tries, and it's time he started, it's time he took a job. वह देख सकता है और कोशिश कर सकता है और यही समय है जॉब लेने के लिए. I ponder on the problem. I could think of nothing that will suit Uncle Ken, or rather, I could think of no one who would find him suitable. I was Aya who made a suggestion. मैंने इस प्रॉब्लम पर विचार किया. मैं ऐसे किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी जो अंकल केन के लिए सुटेबल नहीं हो, और मैं किसी ऐसे आदमी की कल्पना नहीं कर सकती जो उसे सुटेबल समझे. तब आया ने एक सुझाव दिया. The Maharani of Jaipur needs a tutor for her children. She said, just a boy and her girl. कि जो जयपुर की महारानी है उन्हें अपने चिल्ड्रन के लिए ट्यूटर की जरूरत है, बस एक बॉय और एक गर्ल के लिए. हाउ डू यू नो? आस्क्ड ग्रैनी. ग्रैनी ने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता है? आई हियर इट फ्रॉम देयर आया. द पे इज 200 rupees a month and there is not a much work, only 2 hours every morning. मैंने यह आया से सुना, और जो पे है मंथ की वो 200 rupees है और वहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ 2 hours मॉर्निंग पढ़ाना है. That's suit Uncle Ken, I said. मैं कहता हूँ ये जॉब अंकल केन को सूट करेगी. Yes, it's a good idea, said Granny. We will have to talk him into applying. He ought to go over and see them. The Maharani is a good person to work for. हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ग्रैनी ने कहा. हमें उसे ये जॉब शुरू करने के लिए बात करनी चाहिए. उसे जानना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए, और जो महारानी है वो गुड पर्सन है वर्क के लिए. Uncle Ken agreed to go over and inquire about the job. The Maharani was out when he called, but he was interviewed by the Maharaja.
अंकल कैन मान गए और वो जब देखने गए और जांच करने जा रहे थे तब वो वहाँ गए थे तो महारानी वहाँ नहीं थी। तो महाराजा ने उसका इंटरव्यू लिया। डू यू प्ले टेनिस? आज दी महाराजा। क्या तुम टेनिस खेलते हो? महाराजा ने पूछा। Yes, said Uncle Ken, who remembered having played a bit of tennis when he was a schoolboy. अंकल कैन ने कहा, हाँ, किसने याद किया कि जब वह स्कूल बॉय था तो वह थोड़ा टेनिस खेलता था। In that case, the job's yours. I have been looking for a fourth player for a doubles match. By the way, were you at Cambridge? उस मामले में नौकरी तुम्हारी है। मैं एक डबल मैच के लिए फोर्थ प्लेयर की तलाश कर रहा हूँ। वैसे आप क्या कैम्ब्रिज में थे? नो, आई वॉज एट ऑक्सफोर्ड, सेड अंकल कैन। नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड में था, अंकल कैन ने कहा। द महाराजा वॉज इम्प्रेस्ड एंड ऑक्सफोर्ड मैन वॉज हु कुड प्ले टेनिस वॉज जस्ट द सॉर्ट ऑफ ट्यूटर ही वॉन्टेड फॉर हिज चिल्ड्रन। महाराजा प्रभावित थे। वह अपने बच्चों के लिए किसी ऐसे ही शिक्षक की तलाश में थे जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो और टेनिस भी खेलता हो। When Uncle Ken told Granny about the interview, she said, "But you haven't been to Oxford, Ken. How could you say that?" जब अंकल कैन ने ग्रैनी को इंटरव्यू के बारे में बताया तो ग्रैनी ने कहा, लेकिन आप कैन ऑक्सफोर्ड तो गए ही नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? Oh, of course, I have been to Oxford. Don't you remember I spent 2 years there with your brother, Jim? बिल्कुल, मैं ऑक्सफोर्ड गया हूँ। तुम्हें याद है? मैं अपने भाई जिम के साथ 2 साल बिताए हैं। Yes, but you were helping him in his pub in the town. You weren't at the university. हाँ, लेकिन तुम उसे वहाँ उसके पब जो टाउन में है उसे हेल्प करने गए थे। तुम यूनिवर्सिटी में नहीं थे। Well, the Maharaja never asked me if I had been to the university. He asked me if I was at Cambridge and said no, I was at Oxford, which was perfectly true. He didn't ask me what I was doing at Oxford, what difference that it makes, and he strolled off whistling. पर महाराजा ने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ या नहीं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कैम्ब्रिज में हूँ, और मैंने कहा नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड में था, जो एकदम सही है। उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं ऑक्सफोर्ड में क्या कर रहा था। उससे क्या फर्क पड़ता है कि फिर विस्लिंग करना शुरू किया। ये चैप्टर खत्म होता हुआ अंकल कैन ऑन द जॉब का। इस स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। यह है इस स्टोरी के राइटर रस्किन बॉन्ड। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।